Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also. That will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 10, 11 एंड 12 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पर हुआ अभी। इंडिया एनर्जी वीक ये कहाँ पर हमें ऑब्जर्व किया गया, करेक्ट, और किन्होंने इसको इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक को। तो गोवा में हमें देखने को मिला एंड पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर इसको इनॉग्रेट देखने को मिला, इसका इनॉग्रेशन। अब देखो, पीएम नरेंद्र मोदी गोवा में थे विजिट पर 6 फरवरी को। यहीं पर उन्होंने 1330 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया, करेक्ट, ड्यूरिंग द विकसित भारत विकसित गोवा 2047 प्रोग्राम। फिर यहीं पे इन्होंने एनआईटी गोवा को लॉन्च किया, करेक्ट, इसको बनाने की बात की गई, परमानेंट कैंपस बनाने की बात की गई एनआईटी गोवा की, जो कि कहाँ पर होगा, साउथ गोवा में होगा। सेकंड याद रखेंगे कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2024, जो कि कहाँ पर, गोवा में। और तीसरा याद रखेंगे, इन्होंने एक नया कैंपस डेडिकेट किया है टू द नेशन, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इन गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, जो कि गोवा में इन्होंने यहाँ पे डेडिकेट किया। तो ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। गोवा की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन रहेंगे, PS श्रीधरन पिल्लाई जी। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क याद रखेंगे, अंसी नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेडक्वार्टर ऑफ CITS शिफ्टेड फ्रॉम चाइना टू विच कंट्री। देखो CITS क्या है, CITS कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स। तो यहाँ पे चाइना से इनके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की बात की गई टू आर इंडिया, करेक्ट। एंड ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन हुआ ड्यूरिंग द 25th मीटिंग ऑफ द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी, करेक्ट, IGG या IGT। इनकी 25th एडिशन ऑफ FAO IGG की जो मीटिंग थी, ये हुई थी अभी रिसेंटली असम गुवाहाटी में हुई थी, करेक्ट, एंड पहली बार हुई थी। तो इसी के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि चाइना से जो हमारा CITS का हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट किया जाएगा, और कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा हेडक्वार्टर, ठीक। फिर इसी के साथ साथ FAO IGG, इनकी जो चेयरमैनशिप है किसके पास है, अब इसकी चेयरमैनशिप हमारे इंडिया के पास है। इससे पहले यूके के पास थी, अब इंडिया के पास चेयरमैनशिप रहेगी इसकी 2024 से 2026 तक। और फिर 2026 में कीनिया के पास इसकी करेक्ट, श्रीलंका के पास इसकी चेयरमैनशिप आ जाएगी 2026 में 2 साल के लिए। ये जो IGG की FAO IGG की चेयरमैनशिप होती है 2 साल के लिए होती है। जो कीनिया की हम बात कर रहे थे, वो कीनिया की ये है कि कीनिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी।
ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का इन द वर्ल्ड। कीनिया की बात करें तो कैपिटल नायरोबी, राइट, और नायरोबी कीनिया में किसका हेडक्वार्टर आ जाता है, यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो CITES कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स, इनका हेडक्वार्टर चाइना से अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इंडिया में। एंड 25th FAO-IGG की चेयरमैनशिप, अभी हमने इसकी मीटिंग देखी थी, कहाँ पे, असम गुवाहाटी में, राइट। और यहाँ पे चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी, FAO-IGG की, अभी इंडिया के पास रहेगी 2024 से 2026 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। इनके द्वारा भी एक लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड अ सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं सारथी पोर्टल। ये सारथी पोर्टल बेसिकली क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, जिनको भी इंश्योरेंस लेनी है, राइट, उनको हेल्प करेगा ये, ताकि वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस से लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर सकें। ये सराथी पोर्टल लॉन्च किया गया है स्पेसिफिकली आपके फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, एंड ये सारथी पोर्टल में ही आप देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इनकॉर्पोरेटेड है, राइट, इसमें आपकी ये सर्विस रहेगी। फिर इसी के साथ साथ एक कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन नंबर जो कि है 14447, इसको लॉन्च किया गया ताकि जो भी ग्रीवियंसेस हैं फार्मर्स की, उनको यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड जैसे हमने देखा, जो ये सारथी पोर्टल है, ये आपके इंश्योरेंस प्रोसेस को फार्मर्स के लिए ईजी कर देगा, डिजिटाइज कर देगा। सिंगल विंडो सिस्टम में, मतलब आप यहाँ पे इंश्योरेंस देख सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, राइट, उसको अपना डाटा भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपकी जो प्रोसेस होगी ना इंश्योरेंस लेने की फार्मर्स के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ईजी बना दिया जाएगा, आप ऐसे कहिए। ये आपकी एंड्रॉयड में भी अवेलेबल रहेगी एप्लीकेशन, राइट। चलिए, अगर मैं बात करूँ फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ये याद रखेंगे 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु लॉन्च्ड EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। मेन एम क्या है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना। स्कॉलरशिप का एम ही क्या होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना, जो भी बच्चे, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, राइट, जिनको हायर एजुकेशन करनी है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया। सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, राइट, जो अच्छे बच्चे हैं, मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं एंड इकोनॉमिकली वीकर हैं वो, करेक्ट, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। और यहाँ पे कौन फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, JNV क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, एंड EDCIL की फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना CPSE है, करेक्ट, इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो किन्होंने EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट है RBI 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फिस्कल ईयर 24, अभी रिलीज की गई, और इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू ग्रो एट हाउ मच % इन 2024। इन्होंने बोला कि इंडिया GDP ग्रोथ रेट विल बी ग्रोइंग एट 7%, राइट। इनके हिसाब से इंडिया GDP ग्रोथ रेट कितनी होगी, 7% होगी फिस्कल ईयर 24 में। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, राइट। और ये डाटा आप देखेंगे, अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन ला रही है तो वो कुछ और प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया RBI अप्रूवल टू सेटअप अ सब्सिडरी इन जिफ्ट सिटी। ये अपनी एक सब्सिडरी बना रहे हैं IFSC में, जिफ्ट सिटी में, जो कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और ये कौन सी है, IREDA। ये IREDA क्या है, बेसिकली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बेसिकली ग्रीन एनर्जी पे जो फोकस करते हैं, तो वो IRED अप्रूव करता है, इनके द्वारा सेटअप किया जाता है, राइट। तो ये अपनी सब्सिडरी सेटअप कर रहे हैं IFSC में, जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में,
करेक्ट। एंड ये जो नई सब्सिडरी है बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हम जो ग्रोथ चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, उसके लिए जो फाइनेंसिंग है वो ये IREDA जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करवाएगी इंडिया में। IREDA की बात करें तो ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं IREDA इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू सेटअप अ सब्सिडरी इन जिफ्ट सिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रेज किए $300 मिलियन थ्रू अ मेडन सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशुएंस। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड के थ्रू अभी बैंक ने $300 मिलियन यहाँ पे रेज किए हैं। कौन सा बैंक रहेगा? HDFC बैंक रहेगा, राइट। और ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड है इनका जो टर्म रहेगा ईयर कितने साल के रहेंगे? 3 साल का ये बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पे कितना परसेंट इन्होंने मिलेगा? 5.180% हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, करेक्ट। 3 साल तक HDFC बैंक यहाँ पे देगा। ओरिजिनली $750 मिलियन रेज करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी जो इशू किए गए हैं वो है $300 मिलियन के बॉन्ड। एंड इस बॉन्ड के थ्रू आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ग्रो करने की बात की जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, राइट। एंड ये जो बॉन्ड्स हैं HDFC बैंक की HDFC बैंक की जो ब्रांच रहेगी, बैंक की ब्रांच एट जिफ्ट सिटी, उनके द्वारा इशू किए जाएंगे एंड इनको लिस्ट किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस स्टेट ने, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन MOU विद गूगल फॉर AI लेड सॉल्यूशंस अक्रॉस सेक्टर्स। अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स AI लेड सॉल्यूशंस को लॉन्च करने की बात की गई और पूछा जा रहा है किस अभी स्टेट ने एक MOU साइन किया इसके लिए गूगल के साथ। तो वो रहेगी महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पर एक MOU साइन किया गूगल के साथ ताकि AI लेड सॉल्यूशंस को लॉन्च किया जा सके। और एक चीज़ याद रखेंगे, अभी रिसेंटली गूगल ने बार्ड का नेम चेंज करके क्या कर दिया है? जेमिनी कर दिया है। इनके चैटबॉट बार्ड का नेम चेंज करके जेमिनी कर दिया है। इन्होंने जेमिनी एडवांस वर्जन लॉन्च किया, इन्होंने जेमिनी अल्ट्रा भी लॉन्च किया अभी, जेमिनी अल्ट्रा 1.0। इनके लिए इसी के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन जेमिनी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया फॉर एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट। गूगल की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? कैलिफोर्निया USA में, एंड 1998 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं फिर, हु इज़ दैट इंडियन एथलीट जिनको ऑनर किया गया SGFI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो इंडियन स्प्रिंटर PT उषा, ये प्रेसिडेंट भी हैं कहाँ की? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, करेक्ट। एंड इनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल बाय SJFI ड्यूरिंग अ इवेंट जो कि नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया NSCI के दौरान हुआ। और NSCI कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी रिसेंटली लेबनीज जज नवाब सलेम, राइट, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? नवाब सलाम। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जोएन ई डोंगयू को, जो कि नए जोआन ई डुआंगो को, राइट। एंड नवाब सलाम ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और ये इस पोजीशन पे 3 साल तक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर। BFHL क्या है? बंधन फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। इनको अभी अप्रूवल मिल गया है IRDAI से कि ये 100% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं एगॉन लाइफ इंश्योरेंस में। आई रिपीट, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, इनको अप्रूवल मिल गया है IRDAI से कि ये 100% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। नेक्स्ट साइंस एंड टेक पर आते हैं। तो अभी SpaceX के द्वारा, या फिर हम बोलें इनके फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा नासा का एक मिशन स्पेस में ले जाया गया। इस मिशन का नाम है पेस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। इससे अर्थ के क्लाइमेट, ओशंस, एयर फ्लो, करेक्ट, इन सबको स्टडी किया जाएगा यूजिंग दिस पेस सैटेलाइट। पेस सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च की गई एंड स्पेस सैटेलाइट को यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट से स्पेस में ले जाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स।
अभी रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर ने नया मैस्कॉट रिलीज किया फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होंगे? असम में होंगे। थर्ड एडिशन कहाँ पर हुआ था? यूपी में हुआ था। फोर्थ एडिशन की बात करें तो यहाँ पे एक मैस्कॉट भी याद रखेंगे, मैस्कॉट है अष्टालक्ष्मी, ये एक बटरफ्लाई रहेगी। करेक्ट, इट इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेस एंड सिंबलिज्म विच रिप्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडियाज वास्ट बायोडाइवर्सिटी एंड वास्ट नेचुरल मैग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का फिफ्थ एडिशन का आपका अष्टलक्ष्मी, ये आपका क्या रहेगा? मैस्कॉट रहेगा। कहाँ पर होगा? असम गुवाहाटी में हमें फोर्थ एडिशन देखने को मिलेगा। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिश्वा शर्मा जी। इनके द्वारा लॉन्च किया गया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि कहाँ पर होंगे? गुवाहाटी में होंगे, असम में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया एंड बांग्लादेश की वीमेंस फुटबॉल टीम, ये जॉइंट चैंपियंस डिक्लेयर करे गए हैं ऑफ SAFF अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप। ये वीमेंस चैंपियनशिप जो हुई थी आपकी फाइनल ढाका बांग्लादेश में हुआ था इसका फाइनल, राइट। एंड इसके दौरान जो वीमेंस टीम है ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, इनको जॉइंट डिक्लेयर किया गया है विनर। ठीक है, एंड ये आपका ड्रॉ में हुआ था, एंडेड पेनल्टी शूटआउट में भी आपका भी ये विनर नहीं रहे कोई भी, एंड आपका पेनल्टी शूटआउट्स में भी इक्वल रहा, ड्रॉ रहा, एंड कोई डिसीजन नहीं है कि जो फाइनल होता है वो टॉस से होगा, राइट। तो इन दोनों को यहाँ पे फिर विनर डिक्लेयर कर दिया गया है, बोथ इंडियन वीमेंस टीम एंड बांग्लादेश वीमेंस फुटबॉल टीम को एज द जॉइंट चैंपियन ऑफ द SAFF अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तेलंगाना के कैबिनेट ने भी डिक्लेयर किया, इन्होंने जो अपना चेंज द प्रीफिक्स ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, स्टेट एम्बलम एंड ताली स्टैचू। करेक्ट, ताली स्टैचू मतलब मदर स्टैचू, इन्होंने यहाँ पे इनको चेंज कर दिया है। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। तो ये कुछ डिसीजन अभी लिए गए हैं। जो इनका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कोड था ना, इट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम TS टू TG, ये याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है कि अभी रिसेंटली किस स्टेट ने अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड जो उनका TS था उसको चेंज कर दिया है टू TG, वो है तेलंगाना। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने अपना एम्बलम में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज देखने को मिला है, ये इनका नया एम्बलम रहेगा, स्टेट एम्बलम, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन पर। हेडक्वार्टर ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स, इसको शिफ्ट किया गया फ्रॉम चाइना टू इंडिया। PM मोदी की विजिट गोवा के बारे में हम देख ही चुके हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया सराथी पोर्टल फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड कृषि रक्षक हेल्पलाइन। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम। देन RBI की 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फिस्कल ईयर 24, यहाँ पे इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ रेट है 7% प्रोजेक्ट की गई। IREDA ने रिसीव किया RBI नॉट टू सेटअप अ सब्सिडरी इन जिफ्ट सिटी। HDFC बैंक ने रेज किया $300 मिलियन थ्रू मेडन सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया एक MOU विद गूगल फॉर AI लेड सॉल्यूशंस अक्रॉस सेक्टर। इंडियन स्प्रिंटर PT उषा, इनको ऑनर किया गया विद SJFI's लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेबनीज जज नवाब सलाम, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। BFHL ने सिक्योर किया IRDAI का अप्रूवल टू एक्वायर 100% स्टेक इन एगन लाइफ इंश्योरेंस। SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट ने नासा का पेस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया टू स्टडी अर्थ, ओशन, एयर एंड क्लाइमेट। देन असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा लॉन्च किया गया लोगो, असम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि असम गुवाहाटी असम में होंगे। देन इंडिया एंड बांग्लादेश को डिक्लेयर किया गया एज द इंडिया एंड बांग्लादेश की वीमेंस फुटबॉल टीम को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया एज द जॉइंट चैंपियन ऑफ SAFF अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप। तेलंगाना कैबिनेट ने डिसाइड किया टू चेंज द प्रीफिक्स ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, स्टेट एम्बलम एंड टैली स्टैचू। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड RBI अप्रूवल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस? पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर पेमेंट एप्लीकेशंस आपकी डेवलप की जाएंगी मर्चेंट्स के लिए टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। एंड जो पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस होता है बेसिकली ये क्या होता है कि ये मनी रिसीव कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो अभी रिसेंटली जस्पे, जोहो एंड डिसेंट्रो, इन तीनों को यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है RBI से। जस्पे की बात करें, बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है।
जोहो की चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। एंड डिसेंट्रो की बात करें तो ये आपकी बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड एक फिनटेक फर्म रहेगी। ठीक, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में, ताकि इंडियंस को फिट रखा जा सके एंड फिटनेस की तरफ थोड़ा रुझान लाया जा सके, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। राइट, तो किनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट? वो है IRS ऑफिसर ऑफ 2009 बैच नरेंद्र कुमार यादव। ये 2009 बैच के IRS ऑफिसर हैं। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिविल सर्वेंट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट, वो है नरेंद्र कुमार यादव। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक। अभी रिसेंटली नीतीश, हम जानते हैं नीतीश कुमार यादव, ये आपके कौन हैं? ये चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। कहाँ के? बिहार के। करेक्ट, 9वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। एंड अभी रिसेंटली इन्हीं के नाम के ऊपर एक डिवाइस को लॉन्च किया गया। ये डिवाइस बेसिकली आपका क्या करता है? अलर्ट डिवाइस है। ये अलर्ट देता है फॉर नेचुरल कैलेमिटी, जैसे आपकी हीट वेव्स आ गई, कोल्ड वेव्स आ गई, फ्लडिंग आ गई, थंडरस्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक आ गया। करेक्ट, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये अलर्ट्स प्रोवाइड करता है ये डिवाइस, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इसका नाम रहेगा नीतीश। नीतीश की फुल फॉर्म देखें तो नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये नीतीश का नाम रहेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड ये एक अर्लियर अलर्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज प्रोवाइड करता है। इस डिवाइस को डेवलप किया गया था बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद IIT इन पटना बिहार। इसी के अलावा एक और डिवाइस याद रखेंगे जो है इंद्रावज। ये इंद्रावज बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइस है जैसे आपका नीतीश है, सॉरी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंद्रावज, एंड से सिमिलर काम करता है जो आपका ये नीतीश डिवाइस करता है। करेक्ट, ये आपका लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है इस मोबाइल एप्लीकेशन पे। करेक्ट, तो आप देख सकते हैं नीतीश डिवाइस। एंड ये सिंक्ड है आपका बिहार मीटरोलॉजिकल सर्विस सेंटर के साथ। एंड हाफ एन आवर पहले लोगों को कैलेमिटीज लाइक लाइटनिंग, फ्लड, हीट वेव्स, कोल्ड वेव से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये अपना कलर चेंज कर देगा फ्रॉम ग्रीन टू रेड अगर कोई भी यहाँ पे कैलेमिटी हमें देखने को मिलती है। एंड दिस डिवाइस इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर फार्मर्स बट कैन ऑल्सो बी यूज बाय कॉमन पीपल। फिर इंद्रावाज आ जाता है, ये सिमिलर फीचर प्रोवाइड करता है टू दैट ऑफ नीतीश डिवाइस, जो कि आपका बिहार में ऑपरेट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं OECD। OECD क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इनके द्वारा अभी इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया गया फरवरी 2024 में। ठीक, एंड यहीं पे याद रखेंगे इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 25 प्रोजेक्ट की टू बी अराउंड 6.2%। यही अगर फिस्कल ईयर 26 की मैं बात करूं, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.5%। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यहाँ पे फिस्कल ईयर 25 में इन्होंने इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट की है वो है अराउंड 4.9% की। एंड फिस्कल ईयर 26 के लिए जो इन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की है वो है 4.3% की इंडिया में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाता है, इन्होंने OECD के हिसाब से इंडिया 6.2% से ग्रो करेगा इन फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो नीमा शरीखानी, इनके द्वारा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड को जीत लिया गया है। करेक्ट, एंड इनको ये अवार्ड किनके द्वारा दिया गया? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि यूके में है। करेक्ट, लंदन यूके में। फिर इनकी जो फोटोग्राफ है उसका नाम क्या रहेगा? स्लीपी पोलर बियर। करेक्ट, स्लीपी पोलर बियर के लिए इनको यहां पे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। आप यहां पे देख सकते हैं ये वो फोटोग्राफ है एंड स्लीपी पोलर बियर इसका नाम दिया गया। नीमा शरीखानी ऑफ द यूके, इनको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। एंड नीमा शरीखानी वन दिस अवार्ड फॉर हिज फोटो ऑफ अ पोलर बियर स्लीपिंग पीसफुली ऑन अ स्मॉल आइसबर्ग। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा इसको ऑफिशियली 1965 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन
अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अपूर्वा चंद्रा। करेक्ट, पहली चीज। दूसरा याद रखेंगे, संजय जाजू, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ MIB। ठीक है, ये किन को रिप्लेस करेंगे? संजय जाजू ये रिप्लेस करेंगे अपूर्वा चंद्रा को, जो कि अब नए सेक्रेटरी बन गए हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। करेक्ट, तो ये दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मार्क करके चलेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं अपूर्वा चंद्र एंड संजय जाजू। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? ओल्जेस बेकेंतो। ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। 46 ईयर्स इनकी एज रहेगी। यहां पे आप देख सकते हैं ओल्जेस बेकेंतोव, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, 43 ईयर्स के हैं। अमानत पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किनको अभी कंट्री डायरेक्टर यहां पे अपॉइंट किया गया है? कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं? मियो ओका। मियो ओका यहां पे कंट्री डायरेक्टर बने हैं आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इनको अपॉइंट किया गया कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई टू पास द बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी पे पास करने वाली पहली स्टेट बन गई है, और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 के अंडर आता है। एंड उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई है टू पास द बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बिल नाउ विल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, एंड उनके असेंट के बाद इट विल बिकम अ लॉ। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे, तेलंगाना में अभी एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व अप्रूव किया गया, तडोबा वाइल्ड लाइफ, तडोबा कवाल कंजर्वेशन रिजर्व। इसके लिए अप्रूवल मिल गया है बाय तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। तो पहले 75 रामसर साइट्स थी, और अभी 5 नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा। ये रामसर साइट्स होती हैं बेसिकली, या फिर हम बोलें तो जो रामसर साइट्स होती है ना, इनको अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। यूनेस्को मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें ना, यूनेस्को आपके जो कल्चर हो गया, जो हेरिटेज हो गया, इवन अगर आपको याद हो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट भी होती है एक, उसमें क्या होता है, पुराने जो एनवायरनमेंट की जो चीज़ें, जो पुराने आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ होती है, वो भी यहाँ पे लिस्ट की जाती है। तो सिमिलरली याद रखेंगे, तो जो ये रामसर साइट्स होती है ना, रामसर साइट्स बेसिकली क्या होता है, एक वेटलैंड्स का एरिया हो जाता है, या फिर एक एरिया हो जाता है जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर हम इकोनॉमी, जो इकोसिस्टम होता है, उसको अपने आप ही ग्रो करने देते हैं। करेक्ट, तो इसको याद रखेंगे, जो रामसर साइट्स होती है डिक्लेयर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक, 75 पहले रामसर साइट्स थी, और अब 5 नई रामसर साइट्स को ऐड कर लिया गया है। इन 5 रामसर साइट में से 3 साइट्स कर्नाटका की थी एंड 2 साइट्स तमिलनाडु की थी। इनको अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई हैं? 80 हो गई हैं, याद करके चलेंगे। नेक्स्ट, NHAI, इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू डेवलप अ रोबस्ट नेशनल हाईवेज नेटवर्क। एक नेशनल हाईवेज का प्रॉपर नेटवर्क बनाने के लिए, एंड उस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, करेक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाने के लिए, ताकि जो हाईवेज है उनको और सेफ बनाया जा सके फॉर जनरल पब्लिक। तो इसी के लिए अभी रिसेंटली NHAI ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया? वो है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके NHAI ने यहाँ पर एक कमिटमेंट की, या फिर इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, ताकि जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है ना, हम उसको और बेटर करेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अनिल कुमार लाहौटी, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TRAI। TRAI के नए चेयरमैन बने हैं, 3 साल के लिए बने हैं, एंड याद रखेंगे ये 9th चेयरमैन बने हैं ऑफ TRAI। TRAI क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे PD वेघेला को, टू बी द न्यू 9th चेयरमैन ऑफ TRAI। राइट, फिर यहीं पे याद रखेंगे अनिल कुमार लाहौटी, ये IR इंडियन रेलवे सर्विस इंजीनियर है ऑफ 1984 बैच, एंड ये 3rd नॉन IAS बने जो कि यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं TRAI के सिंस 1997।
TRAI की बात करें तो अब चेयरमैन कौन बन गए हैं, अनिल कुमार लाहौटी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। सिमिलरली नेक्स्ट याद रखेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपॉइंटमेंट हुई है फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर की HR खान की एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं वो कौन है, वो है HR खान। HR खान फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर हैं, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। इनको अभी अपॉइंट किया गया HR खान को एज देयर न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ACC ने अप्रूव किया DFS प्रपोजल टू ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट। तो जस्ट गो थ्रू इट। फिर अगर मैं बात करूं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर क्या रहेगा, जयपुर राजस्थान में, एंड 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर ऑब्यूट्री। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हरमोहन धवन, इनका रिसेंटली पास निधन हो गया। हरमोहन धवन ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम चंडीगढ़। इनका 83 की एज में निधन हो गया इन मोहाली, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज, टेक अ नोट ऑफ दिस, पूछा जा सकता है शहीद दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। 30 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड टू कमेमोरेट द लाइव्स ऑफ द पीपल, जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को इन द लाइन ऑफ ड्यूटी टू द नेशन, राइट। तो शहीद दिवस, ऑल्सो शहीद दिवस याद रखेंगे, महात्मा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, जिनको हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं महात्मा गांधी जी को, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी को। एंड इस साल 2024 में हमने उनकी 76th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 2024 को। तो मार्टर्स डे बोले, सर्वोदय डे बोले, या फिर शहीद दिवस बोले, 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ओडिशा के द्वारा भी एक स्कीम लॉन्च की गई है, लभा स्कीम। लभा स्कीम अंडर बेसिकली क्या है, MSP प्रोवाइड करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया जाएगा टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी आपका इंडिविजुअल यहाँ पे स्कीम के अंडर ट्राइबल कम्युनिटी से जो भी व्यक्ति कलेक्ट करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, इस माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यहाँ पर लाएगा, उनको यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या होगा कि जो आपके पहले क्या होता था, अब तो सरकार ले लेगी, लेकिन इससे पहले क्या होता था, मिडलमैन इस पे बहुत कम प्राइस पे उनसे इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बाय कर लेते थे, बहुत ही कम प्रोड्यूस पैसे देकर, जिससे क्या होता था, जो राइट अमाउंट मिलना चाहिए था इनको, वो नहीं मिलता था। तो अब लभा स्कीम के अंडर यहाँ पे राइट प्राइस मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अंडर द स्कीम जो प्राइमरी कलेक्टर्स होंगे ट्राइबल कम्युनिटी से, वो अपने मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो उन्होंने कलेक्ट किया है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट सेंटर से, वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड ये जो सेंटर्स होंगे इनको इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे मैनेज करेगा, राइट। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेटअप किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, और इसके लिए ये लभा स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। स्पोर्ट्स पर आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ अभी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो कौन सा एडिशन हमें देखने को मिला था, तो 6th एडिशन हमें देखने को मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। किसके द्वारा होस्ट किया गया, किस स्टेट ने होस्ट किया, तमिलनाडु ने इसको होस्ट किया था। मेडल टैली में कौन सी स्टेट ने टॉप किया, महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया विद अ टोटल ऑफ 158 मेडल्स। 158 में से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज रहेगा। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं तमिलनाडु, एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाता है हरियाणा इन द मेडल टैली, करेक्ट। यहाँ पे एक मैस्कॉट याद रखेंगे, इसका मैस्कॉट का नाम था वीरा मंगाई। वीरा मंगाई ये आपका मैस्कॉट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे एडिशन का, जो कि तमिलनाडु में हुआ था, राइट। एक और चीज़ याद रखेंगे, ये 19 से लेके 31 जनवरी तक हुए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने फिनिश किया सेकंड, इनका सिल्वर मेडल आया। ये रनर अप रहे कहाँ पर, FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप में। आई रिपीट, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम इन्होंने ये रनर अप रहे, सिल्वर मेडल रहा इन द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप 2024 आफ्टर लूजिंग टू नीदरलैंड। एंड नीदरलैंड की यहाँ पे क्या रही, फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, इन्होंने जीत लिया है FIH 5S वीमेंस वर्ल्ड कप, करेक्ट, जो कि 24 से 31 तक हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर।
वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स, अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, करेक्ट। एंड इसी दिन रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है, उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2 जनवरी को। एंड थीम याद रखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स का जो पीपल के लिए, जो प्लेनेट के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंस है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है अंडर दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम रहेगी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी रिसेंटली 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है तमिलनाडु की? वो है तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 18वीं 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु स्टेट कौन सी है? तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और इसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी 2023 के लिए, वो कितनी रहेगी? 93। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंक 2022 में कितनी थी? 85। तो हम कह सकते हैं इंडिया में जो करप्शन का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2023 में हमें करप्शन का इंडेक्स ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है, इंडिया की रैंक रहेगी 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एंड यहीं पर एक चीज़ और याद रखेंगे, टॉप पर कौन सी रही? फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है हमारी कंट्री डेनमार्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सीईओ कौन रहेंगे? वो हैं डैनियल एरिक्सन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक रही 93 इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डेनमार्क ने टॉप किया, एंड ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द जीडीपी फॉरकास्ट ऑफ इंडिया बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 2024? तो देखो 2023 की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो कितना प्रोजेक्ट किया गया? टू ग्रो बाय 6.7%, राइट। वहीं पे अगर मैं 2024 की बात करूं तो इंडिया का एक्सपेक्टेड है 6.5% से इंडिया ग्रो करेगा। इवन 2025 में भी इंडिया 6.5% से ग्रो करने की यहाँ पे बात की गई अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल फैक्टर्स देखें, ग्लोबल ग्रोथ की बात करें, तो हम देख रहे हैं वॉर लाइक सिचुएशन है, रिसेशन की बात कर रही है, तो वर्ल्ड जो ग्रो कर रहा है अभी 3.1% से ग्रो कर रहा है 2023 में, एंड 2024 में ये डाटा रिलीज किया गया है। और अगर 2025 की मैं बात करूं तो वर्ल्ड 3.2% से यहां पे ग्रो करेगा, ग्लोबल ग्रोथ जो रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, जर्कॉन मिसाइल, ये एक सुपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल है, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई? दूसरा, स्टेनमा अडामसी, ये नई स्पीशीज है, किस एनिमल की या किस चीज़ की, जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई, और ये बताओ ये कहाँ पर, लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया? थर्ड, विच म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? फोर्थ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट? एंड ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, ये भी बताओ, रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फिफ्थ, व्हाट इज द वर्ल्ड, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ईयर? और इसकी थीम बताओ मुझे क्या रहेगी? तो दोस्तों ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.